Sir, you may kindly see that the Anganwadi workers and Anganwadi helpers are being provided meager salary, not even salary, only honorarium. And that too, the Government of India's contribution, according to the answer supplied by the Honorable Minister, is just 4,500 from the Government of India contribution for Anganwadi workers, and for Anganwadi helpers, it is just 2,700 rupees per month. तो फाइनली सबसे पहले मैं आप सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं तक शेयर कीजिए, ताकि उनको मालूम चल पाए कि कल यानी 2 फरवरी 2024 को संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री भारत सरकार की जो है स्मृति ईरानी से एक सांसद ने, जो केरल के कोल्लम लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेलफेयर के बारे में, उनके मानदेय बढ़ोतरी के बारे में डिटेल में जब चर्चा की, तो उनके द्वारा किस प्रकार जवाब दिया गया, सरकार मानदेय बढ़ोतरी के बारे में क्या सोचती है। अभी आपने एक छोटा सा क्लिप वीडियो के शुरू में देखा, अब इसके आगे आप एक पूरा वीडियो इनका देखिएगा जो संसद में चर्चा की गई है मानदेय बढ़ोतरी पर। जिस प्रकार सांसद महोदय ने, जो एन के प्रेमचंद्र जी है, केरल राज्य के कोल्लम लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, उनका कहना है कि पूरे भारत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है वो काफी ज्यादा मेहनत करती है, काफी ज्यादा जिम्मेवारी उन पर है, तो सरकार इतना कम मानदेय उनको क्यों दे रही है और कम से कम वेतनमान क्यों नहीं कर रही है, उनको अस्थायी क्यों नहीं कर रही है। इस पर जो है उन्होंने ये भी बताया किस प्रकार अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, गर्भवती धात्री महिलाओं के काम की जिम्मेवारी, उनके विकास की जिम्मेवारी, कुपोषण दूर करने की जिम्मेवारी, वैक्सीनेशन कराने की जिम्मेवारी पूरे भारत के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर है। तो आखिर इसके जवाब में माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने क्या कहा, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला पूरी चर्चा को। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अधिक लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सबको मालूम चल पाए कि सरकार संसद में आंगनबाड़ी मानदेय बढ़ोतरी पर किस प्रकार जवाब दी है। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर सरकार के बारे में और इनके डिसीजन के बारे में आपका क्या सोचना है। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर, उसके बाद समरी में भी आपसे आगे मिलते हैं। श्री एन के प्रेमचंदन सर, क्वेश्चन नंबर 6। माननीय मंत्री जी। सर, सभा पटल पर उत्तर पेश। ऑनरेबल मेंबर। Thank you very much, sir. Sir, this question relates to a very important issue regarding the Anganwadi workers and Anganwadi helpers. Sir, you may kindly see that the Anganwadi workers and Anganwadi helpers are being provided meager salary, not even salary, only honorarium. And that too, the Government of India's contribution, according to the answer supplied by the Honorable Minister, is just 4,500 from the Government of India contribution for Anganwadi workers, and for Anganwadi helpers, it is just 2,700 rupees per month. Sir, the work entrusted with the Anganwadi workers and helpers and the responsibilities entrusted with them is very huge. It is very disproportionate. The honorarium provided to the Anganwadi workers and helpers is very, very meager, and it is disproportionate to the work entrusted with them. So the last time the honorarium is revised on 1st October 2018. That is 3,000 rupees has been enhanced to 4,500 rupees per annum as the contribution of Government of India. Sir, the work of, I am not detailing the work done by the Anganwadi workers and helpers. 3 pages answer submitted by the Honorable Minister itself is giving that numerous works, numerous responsibilities being entrusted with them, but the salary or the honorarium is very meager. Sir, the preschooling activities of the children below the age of 3 to 6 years, and the growth monitoring of the children, and the mother's care, mother nutrition and the health program between the 15 and 49 age, and take-home ration for the pregnant women and lactating mother, and this Amrita Nutrimix program, community-based meeting toys in 1 month. All this, yes, sir, all these works are being done by, yes, sir, all by these workers. So my specific question, madam, is through you, sir, that is whether the government proposes to increase the honorarium of the Anganwadi workers and helpers on that line that 5 years you are enhancing the pay commission. As far as the workers are concerned, long-term agreement is there for 5 years. Honorable member, sir, please. Already 5 years are over. Whether the government will concede the demand to enhance the honorarium of Anganwadi workers in line with the Government of India employees, and also the long-term agreement as per the workers is concerned. Thank you very much, sir.
Sir, at the onset, the 3-page answer that the Honourable Member refers to does not describe the volume of duties of Anganwadi workers. In fact, it describes the volume of benefits given by Government of India to Anganwadi workers. That being said, I, through you, sir, applaud the passion with which the Honourable Member speaks about the honorarium of Anganwadi workers. I, in fact, was hopeful that in the year 2008, when the UPA was in power, when the helper got a mere 750 rupees, the same house would have witnessed the exhibition of such passion. That from 750 rupees in the UPA era, today the Anganwadi workers in mini Anganwadis, which are now to be upgraded to full-fledged Anganwadis, will receive 4,500 rupees. That is already illustrated in the answer given, sir. But additionally, what the answer also contains is that per community-based event that Anganwadi workers do, 250 rupees is given per community-based events for Anganwadis to engage with community. Additionally, 500 rupees is given, which encompasses if the Anganwadi worker visits the house of a beneficiary, or for that matter measures a child as per WHO standards. I am hopeful that the detail that is illustrated in the answer given is reflected upon by the Honourable Member, and I am sure that the Honourable Member, given the passion with which he speaks about Anganwadi workers, would also applaud the announcement yesterday, courtesy the Prime Minister of India, of now ensuring that the benefits of Ayushman Bharat Yojana are now made available to Anganwadi workers and helpers across the country, including ASHA workers, who have our gratitude for their service. तो फाइनली जिस प्रकार आपने अभी माननीय सांसद महोदय और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो महिला बाल विकास मंत्री भारत सरकार में है, उनके पूरे सवाल जवाब का चर्चा का वीडियो आपने देखा, जो कल 2 फरवरी 2024 को संसद में जो है वो लोकसभा में हुई है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आई थिंक आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी और कुछ लोगों को चीजें समझ में नहीं आई होंगी, क्योंकि ये पूरा डिस्कशन इंग्लिश लैंग्वेज में था। माननीय सांसद जी का क्वेश्चन सीधे ये था कि सरकार 1 अक्टूबर 2018 के बाद अभी तक उन्होंने मानदेय की बढ़ोतरी नहीं की है। लगभग 5.5 साल हो चुके हैं और 3000 से 4500 मानदेय 1 अक्टूबर 2018 को किया गया था। उसके बाद अभी तक कुछ भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। सरकार इसको कब तक बढ़ोतरी कर पाएगी? और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, इतना सारा काम सरकार का बोझ वो ढो रही है पूरे भारत भर में, तो उनका मानदेय का वृद्धि कब होगा या फिर उनको वेतनमान या अस्थायी कब किया जाएगा? इस पर श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा कि इसका जवाब पेज के माध्यम से सौंप दिया गया है और उनके द्वारा क्लियरली कहा गया कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को जो है सरकार की तरफ से 250 रुपए प्रति CBE यानी कम्युनिटी बेस्ड इवेंट, यानी आपके केंद्र पर जो अन्नप्राशन होता है, गोद भराई होता है, हर एक इवेंट का 250 रुपए अलग से सरकार उनको देती है। यानी आप सभी को 250 रुपए का जो है प्रोत्साहन राशि सरकार जो है CBE के लिए देती है। लेकिन यहाँ पर सांसद महोदय जी का जो स्पष्ट जवाब माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से मुख से सुनने को नहीं मिला कि मानदेय बढ़ोतरी पर सरकार क्या कहती है, क्योंकि यहाँ पर केरल के इस सांसद NK प्रेमचंद्रन जी के द्वारा हमेशा बार बार जो है संसद में ये मुद्दा उठाया जाता है कि मानदेय की वृद्धि की जानी चाहिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के। लेकिन अभी फिलहाल सरकार जो है शायद मानदेय वृद्धि के मूड में नहीं है, क्योंकि मानदेय वृद्धि पर चर्चा नहीं करके उन्होंने ये चर्चा की कि बजट में 1 फरवरी 2024 को मोदी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता सभी को जो है वो आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत कवर कर लिया है और बीमार होने पर उनका इलाज कराया जाएगा। पिछले वीडियो में कई लोगों के कमेंट काफी बुरे आए हुए थे कि उनको बीमार होने से मतलब नहीं है, प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्ट जो प्रॉफिट होगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, उनका विकास जो होगा वो मानदेय वृद्धि से होगा, क्योंकि 7,000, 6,000, 8,000, 10,000 में मानदेय में जो है घर चलाना पॉसिबल नहीं होता है। इसके तो यही सारी चीजें हैं, डिस्कशन जो है लेटेस्ट हुई। उम्मीद करूंगा आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। खैर, इसके बाद भी अगर कुछ डिस्कशन होगा तो मैं आपको डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगा। आई होप आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।